इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। कले कथा लागे लेठा जनतार बारे मात माति विपरत राघव साड्डा। आम आदमीर समस्यार सहित मात मातिছিল राघव साड्डाई। पिछे सेका लागिल आम आदमी पार्टीर गातहे, जार बारे राज्यसभार उपदलपति पदर पर राघव साड्डाक अपसारण करिले आपे। विपरीते बिजेपिले जोৱাৰ चर्चा चलार बारे राघव साड्डाक आपे अपसारण करारो अभियोग उत्थापन होइছে। बहु राजनैतिक नेता আহিছে গৈছে, কিন্তু সংসদত ফেঁচাটোৰ দৰে বহি নাথাকি কিছু নেতাই জনতাৰ সমস্যাক লৈ সংসদত মাত মাতি আহিছে। তাৰে অন্যতম এজন হ'ল সাংসদ ৰাঘৱ সাড্ডা। ৰাজ্যসভাত ৰাজহুৱা বিষয়, মধ্যবিত্তৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে ভাষণ প্ৰদান কৰি আহিছে এইগৰাকী ৰাঘৱ সাড্ডাই। গিগ ৱৰ্কাৰৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা, ভাৰতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰসমূহৰ যাতায়াতৰ পৰিস্থিতি অধিক বেয়া, বিমানবন্দৰত 10 টকীয়া চাহ হওক, একমহীয়া ৰিচাৰ্চ প্লেনৰ দৰে বিষয়সমূহ সংসদত উত্থাপন কৰি আহিছে ৰাঘৱ সাড্ডাই। পিছে সাধাৰণ জনতাৰ এইসমূহ সমস্যা উত্থাপন কৰাই যেন কাল হৈ পৰিল সাংসদ ৰাঘৱ সাড্ডাৰ বাবে। সূত্ৰ অনুসৰি আম আদমী পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যসভাৰ সচিবালয়ক অৱগত কৰিছে যে সাংসদ ৰাঘৱ সাড্ডাক সংসদত ভাষণ দিবলৈ সময় দিয়াটো উচিত নহয়। তাৰ পিছতে ৰাজ্যসভাৰ উপদলপতি পদৰ পৰা ৰাঘৱ সাড্ডাক অপসাৰণ কৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। আম আদমী পাৰ্টীয়ে ৰাঘৱ সাড্ডাৰ স্থানত নতুন উপদলপতি নিযুক্তি দিছে। আম আদমী পাৰ্টীৰ সাংসদ অশোক মিত্তাল হ'ব ৰাজ্যসভাত নতুন উপদলপতি। এই সন্দৰ্ভত আম আদমী পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যসভা সচিবালয়লৈ এখন পত্ৰ দাখিল প্ৰেৰণ কৰিছে। ৰাঘৱ সাড্ডাক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাটো বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। এসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য সহায়ক হিচাপে চৰ্চা লাভ কৰা ৰাঘৱ সাড্ডাৰ আকস্মিক অপসাৰণে বহু জল্পনা কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু যি ধৰণে সাংসদ ৰাঘৱ সাড্ডাক ৰাজ্যসভাত দলৰ উপদলপতি পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে, সদনত ভাষণ দিবলৈ সময় নিদিবলৈ ৰাজ্যসভাৰ সচিবালয়ক অনুৰোধ জনাইছে, তাৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে ৰাঘৱ সাড্ডাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশৃংখল আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতৃত্বৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল। যাৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সঁচাকৈ বিজেপিৰ বি টিম হৈ কাম কৰিছে নেকি আম আদমী পাৰ্টীয়ে? বিজেপি চৰকাৰখনৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবেই ৰাঘৱ সাড্ডাক অপসাৰণ কৰিলে নেকি আম আদমী পাৰ্টীয়ে? এই প্ৰশ্ন এতিয়া সচেতন মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে। অৱশ্যে অপসাৰণৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰথমটো পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৰাঘৱ সাড্ডাই। পোষ্টটোত তেওঁ যোৱা কিছুদিন সংসদত উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে। ভিডিঅ'টোত সংসদত তেওঁ কেইবাটাও বিষয়ত ভাষণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। 2 মিনিট 45 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছে তেওঁ, য'ত ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ওপৰত কৰ বোজা, তথ্যৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ সমস্যা, পিতৃত্বৰ ছুটি, ন্যূনতম বেলেঞ্চক লগোৱা জৰিমনা, খাদ্যৰ মিশ্ৰণ, ইনকামিং কলৰ বাবে চাৰ্জ, 28 দিনীয়া ৰিচাৰ্জ কেলেংকাৰী, অতিৰিক্ত লটাৰী মাচুল, কাগজ লীক কেলেংকাৰী, वायु प्रदूषण आदि असंख्य विषय उत्थापन करा देखा गई। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है
टैक्स। 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है, इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं, उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। ইয়াৰ পিছতেই এক্সৰ হেণ্ডেলত আন এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰে তেওঁ, য'ত আপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে ৰাঘৱ চাদ্দাই। আম আদমি পাৰ্টিলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে, মোৰ নীৰৱতাক পৰাজয় বুলি ভাবি নল'ব, কিয় মোৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰা হৈছে বুলি প্ৰশ্ন ৰাঘৱ চাদ্দাৰ। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সঁচাকৈ বিজেপিৰ বি টিম হৈ কাম কৰি আহিছে নেকি আম আদমি পাৰ্টিয়ে? জনতাৰ সমস্যাবোৰক লৈ মাত মাতি অহাৰ বাবে কিয় গাত লাগিল আম আদমি পাৰ্টিৰ? এইসমূহ প্ৰশ্ন এতিয়া জনতাৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিজেপি আৰু আম আদমি পাৰ্টি এতিয়া ইপিঠি সিপিঠি নেকি? আনফালে আকৌ ৰাজ্যসভাৰ উপদলপতি পদৰ পৰা ৰাঘৱ চাদ্দাক অপহৰণ কৰাৰ আঁৰত আন এটা ৰহস্যৰো উমান পোৱা গৈছে। ৰাঘৱ চাদ্দা বিজেপিলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ উপদলপতি পদৰ পৰা ৰাঘৱ চাদ্দাক অপসাৰণ কৰা হৈছে বুলিও এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে।
News Desk Report, Northeast Now.